All right. So once again, welcome to Lakshmi Defense Preparatory Academy. We are on the fourth day of pre-online boot camp, and the topic for the fourth day is going to be Introduction to the Psychology. So as I told you earlier, that we all are going to discuss today that what is psychological tests, how is it going to conduct it for you, and what all things you should be keeping in your mind while attempting to the test. ठीक है, हमने पहले भी बात करी है अबाउट द इंटायर एसएसबी प्रोसीजर. एसएसबी की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कितने स्टेजेस होते हैं और कितने टाइप के टेस्ट्स होते हैं इन टोटल. We'll just now try to recall it out that there are two stages in the SSB, right? Stage 1 and stage 2. Stage 1 में सबसे पहले OIR टेस्ट होता है. OIR टेस्ट is nothing but a basic intelligence test जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर्स आते हैं. In total you will be having two question papers. एक क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चंस होते हैं. You just have to attempt two papers and clear it out. All right. Then after we are going to have PPDT, that is picture perception and discussion test. After clearing both these tests, you'll be going ahead for the stage 2. Now, what all things we are having for stage 2? First of all, we are going to attempt the psych tests for all. ठीक है. Psych test में भी 4 टेस्ट होते हैं इन टोटल, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. Then after you all have to undergo one personal interview taken by any senior interviewing officer in the board. Then after you'll be having group testing conducted by any GTO of your board, and at last we'll be having board conference. After having the board conference, you all will be getting your all results. That will decide whether you have to stay back for the documentation purposes or what or not. ठीक है. तो आज हम इन पर्टिकुलर बात करेंगे साइक टेस्ट के बारे में. साइक टेस्ट क्या होता है और कितने टाइप की चीजें हमें करनी है साइक में. ऑलराइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, क्या बताया था उस दिन मैंने कि साइक टेस्ट में टोटल 4 टाइप के टेस्ट होते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट इन द साइकोलॉजी. ऑलराइट. साइक टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर टेस्ट. द फर्स्ट वन इज थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, दैट इज commonly known as TAT. All right, that is thematic apperception test, TAT. The second one is word association test, that is WAT. Once again, I will request you, do not call it WAT, it is WAT. Word association test, WAT. The third one is situation reaction test, that is SRT. All right. SRT का full form है situation reaction test. Manju is asking that sir SSB और CDS अलग अलग होता है या उस अलग अलग होता है. SSB का जो conduction होता है, SSB would be conducted after the CDS examination. So once you clear the CDS examination, then after you can go for the SSB. All right. Yeah. So what we were discussing, अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर once I think I'll give you some amount of time to ask the questions. तो अभी डिस्कशन कर लेते हैं, चीजें पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा, आप उस टाइम पे अपने डाउट पूछ लीजिएगा प्लीज. Meanwhile, please listen to this up. So the third test that we were discussing about is SRT. SRT is commonly known as situation reaction test. ठीक है. Then after the last would be self description test. इसको commonly SD या SDT भी बोलते हैं. So you can call it as both of these, SD और SDT. याद रखना, साइक में, साइकोलॉजिकल टेस्ट में टोटल 4 टेस्ट होते हैं. फर्स्ट वन इज TAT, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट. सेकेंड वन इज WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. थर्ड वन इज SRT, situation reaction test, and the fourth one is SD, self description. All right. Now, before you start with the psychological tests, we'll be having certain amount of instructions.
साइक टेस्ट स्टार्ट होने के पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है? नथिंग बट दे जस्ट वांट टू टेल यू व्हाट ऑल थिंग्स टू बी डन इन द एंटायर प्रोसीजर ऑफ साइक टेस्ट ओवर देयर। सो साइक टेस्ट में बेसिकली वो आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि कैसी चीजें होने वाली हैं आपके साथ, आपको क्या चीजें दिमाग में रखनी है और कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो व्हाट आर इंस्ट्रक्शंस विल बी गेटिंग, एक वो लंबा सा फॉर्मेट होता है साइक टेस्ट से स्टार्ट होने का, जैसे कौन सी चीजें करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। दैट इज सेवरल, यू नो, सम अदर चैप्टर विल नॉट डिस्कस दैट। फॉर नाउ आई जस्ट लाइक टू टेल यू व्हाट ऑल इंस्ट्रक्शंस यू गाइड वुड बी गेटिंग। क्या इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे? सबसे पहले तो यू ऑल हैव टू कंप्लीट द टेस्ट इन वन सिटिंग। मोस्ट ऑफ दिस आई थिंक आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, मैंने पहले भी आपको बताया है, बट टुडे बिफोर डूइंग द टेस्टिंग्स आई वुड जस्ट लाइक टू रिकॉल इट आउट, जिससे आप सभी को याद रहेगी, है ना। जो लोग अभी ज्वाइन हुए उनको मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं, आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग रिगार्डिंग साइक टेस्ट, we will have a half psych test today. So please be ready with the pen and paper. Once we all have discussed about psych test, we all will be having a half psych test. अभी कंडक्ट करेंगे, साथ में बैठ के करेंगे, ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि साइक टेस्ट होता क्या है और कैसे होता है। चलो, तो इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट द टेस्ट इन वन सिटिंग। इट मींस पहले भी मैंने बताया, बीच में उठ के कहीं जा नहीं सकते हो। ये मत सोचना साइक टेस्ट स्टार्ट हुआ टीएटी लिखेंगे, थोड़ा सा कहीं जाएंगे वॉशरूम के बहाने से, किसी और बहाने से, फिर वापस आएंगे, बाकी चीजें लिखेंगे। नथिंग लाइक दैट। वंस यू हैव सीटेड, यू हैव टू बी सीटेड। 2 hours 20 minutes। एक बार टेस्ट स्टार्ट हो गए के बाद जो ड्यूरेशन होती है वो है 2 hours 20 minutes इन टोटल। तो एटलीस्ट 2 घंटे 20 मिनट के लिए आपको वहां पे बैठना होता है, ठीक है। टीएटी के लिए क्या होता है? 30 seconds to look at each picture and 4 minutes to write the story. Basically what will happen, no, you'll be having a psych dossier. Now listen to it very carefully. Please ध्यान से सुनिए, psych dossier होता क्या है? Psych dossier is nothing but a booklet of several pages. एक बुकलेट होता है, उसमें कई सारे पेजेस होते हैं, ठीक है। उन पेजेस में क्या होगा? ऐसे कोरे कागज के पेज हैं आपके साथ, ठीक है। वहां पे क्या होता है? सपोज यू हैव स्टार्टेड विद टीएटी, सो टीएटी के लिए दे विल स्टार्ट विथ 1 2 then 3 4 5 6 7 8 then certain more pages for you over here। 7 8 के बाद क्या है? 9 10 11 12। Now what will happen once you see the first picture of the psych test? जो फर्स्ट स्टोरी है वो आपको फर्स्ट पेज के हाफ में लिखनी है, अराउंड 100 वर्ड्स ऑफ द स्टोरी। फर्स्ट पेज के हाफ में आपको फर्स्ट स्टोरी लिखनी है। Once the time is up, you have to stop writing the first story. Then the second story you have to write on the second half of the page. ठीक है? That is how the things have been divided to you. All right. So what will happen? They will show a picture in front of you. एक फोटो दिखाएंगे आपके सामने प्रोजेक्टर पे। उस प्रोजेक्टर में आपको पिक्चर फ्लैश होगी फॉर 30 minutes, 30 seconds. They will show you the picture for 30 seconds. Once you have seen the picture, you have to write the story in the first half of the first page. First page के first half में आपने लिख दिया। उसके बाद they will give you time for 4 minutes. तो अभी आपको 4 मिनट में क्या लिखना है? वो स्टोरी लिखनी है। 4 मिनट की स्टोरी हो गई, उसके बाद फिर से 30 सेकेंड्स के लिए ही आपको दूसरी पिक्चर फ्लैश कराई जाएगी। The second picture would be flashed in front of you for 30 seconds again. What you guys have to do, वो जो second half of the first page है वहां पे आपको second picture के ऊपर एक स्टोरी लिखनी है in the given 4 minutes of time again, ठीक है। Then आप क्या होगा? 30 seconds के लिए फिर से तीसरी पिक्चर दिखाई जाएगी। The third picture would be shown to you for 30 seconds. What you guys have to do, again second page का आपको यूज करना है for writing the third story. Then again what will happen?
4 minutes would be given to you. 4 minutes में आप थर्ड स्टोरी लिख देंगे. उसके बाद 30 सेकेंड फोर्थ पिक्चर दिखाई जाएगी. You will be writing a story in the second half of second page. Clear है? The same way you will the picture would be kept shown to you and you will keep writing down the story. एक हाफ में एक, दूसरे हाफ में दूसरी, ऐसे ही करते करते you will be writing 11 pictures. How many total? Please listen to it carefully. 11 pictures. 11 pictures आप लिखेंगे, सॉरी 11 स्टोरीज आप लिखेंगे पिक्चर्स को देख करके. Once you have finished off with 11 pictures, what will happen? A blank slide would be shown to you. एक ब्लैंक स्लाइड होगी आपके सामने, उसमें कुछ भी नहीं होगा. The projector would show you a blank slide. After looking at the blank slide, what you guys have to do, you have to write the 12th picture. So blank slide में देखने के बाद क्या करना है? 12th पिक्चर लिखनी है आपने. सॉरी यार, ब्लैंक स्लाइड में देखने के बाद क्या करनी है? 12th स्टोरी लिखनी है आपने. 12th स्टोरी लिखने के बाद एटलीस्ट टीएटी आपका खत्म हो गया. ठीक है, यू आर डन विद द टीएटी फॉर्म. देन आफ्टर वी विल स्टार्ट विद डब्ल्यूएटी. आई होप टीएटी का पूरा फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, 30 seconds to look at the picture and 4 minutes to write the story. The same will keep going on for you for 12 stories, 11 pictures for the story, 12th as blank slide. All right, total 54 minutes you guys are supposed to spend for TAT in particular. ठीक है, after TAT you will be getting WAT. वहां पे क्या होता है? 15 seconds to look at and respond for each word. WAT का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है. I'll explain you after some time. थोड़े टाइम के बाद मैं आपको बताऊंगा. Then after 60 SRTs, total allotted for the SRTs would be 30 minutes. Then after SD time कितना होता है allot? 15 minutes for 5 paragraphs. Basically 5 questions you guys are getting, and what you have to do, you have to write all your 5 responses in 15 minutes of time. ठीक है, मंजूर सर 11th स्टोरी में 4 मिनट का टाइम मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा. सारी स्टोरीज लिखने के लिए 4 मिनट्स का टाइम मिलेगा. वेदर इट इज द पिक्चर और द ब्लैंक स्टोरी, सभी के लिए 4 मिनट का टाइम मिलता है आपको. ठीक है. 6th is for each new TAT slide and WAT word a corresponding sound will be heard. So आज भी जब हम आपको TAT की और हाफ साइड टेस्ट की प्रैक्टिस करवाएंगे ना, so we will tell you exactly what sound you would be getting while approaching to this test. टेस्ट करने के टाइम पे कौन से साउंड आपको सुनाई देते हैं. साउंड क्यों आता है? एक सिंपल सा रीजन है. while writing the story or writing the responses, you may not be aware कि कब स्लाइड चेंज हुई, नई पिक्चर आ गई या फिर नया वर्ड आ गया, कुछ भी. So that is why what they will do while changing the slide, या फिर नई पिक्चर दिखाते टाइम या फिर नया वर्ड दिखाते टाइम, they will give you a sound. साउंड देने से क्या होता है? सभी को पता चल जाता है कि अभी स्लाइड या पिक्चर चेंज हो गई है. ठीक है ना. चलो, these are all about the basic instructions. डिटेल में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. ठीक है. Any individual have any doubts so far? किसी को कोई भी डाउट अभी तक हो, प्लीज डू लेट मी नो, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड. जल्दी बताइए प्लीज. सर 12th स्टोरी बिना कुछ देखे कैसे लिख पाएंगे? देखो, वही तो ट्रिक होता है. अभी क्या है, 11 स्टोरीज के लिए आपको वो पिक्चर्स देते हैं, बट 12th स्टोरी में दे वांट टू टेस्ट योर ऑन साइकोलॉजी. किसी फोटो को देख के मतलब किसी पिक्चर को देख के स्टोरी बनाना कुछ और होता है, बट बिना कुछ भी देखे हुए या फिर ब्लैंक शीट देखकर अगर आप कोई स्टोरी बनाते हैं ना, बेसिकली दे आर लुकिंग एट योर रियल साइकोलॉजी. दैट विदाउट लुकिंग एट एनी पिक्चर, बिना कोई फोटो आपके सामने रखे हुए अगर आप कोई स्टोरी बना रहे हैं, तो आपकी पर्सनल साइकोलॉजी क्या कहती है आपके लिए, दैट इज समथिंग दे वांट टू नो फॉर यू. आपके माइंड में, आपके बैकग्राउंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कौन सी चीजें चलती हैं, दैट इज व्हाट विल बी शोन टू यू. ऑलराइट.
इसलिए वो लास्ट में आपको एक पिक्चर विदाउट एनी सॉरी एक स्टोरी विदाउट एनी पिक्चर और स्लाइड लिखने के लिए बोलते हैं। ठीक है, एनी फर्दर डाउट्स एनीवन? सर हम स्टोरी जो 12th स्टोरी है उसे पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हैं घर से? चलो, बहुत अच्छा सवाल है। अब सुनो, स्टोरी हम बिल्कुल प्रिपेयर करके जा सकते हैं क्योंकि वहां पे तो कोई पिक्चर दिखानी नहीं है, तो रिलेवेंसी का तो सवाल ही नहीं होता है। बट ऑलवेज रिमेंबर, दे आर साइकोलॉजिस्ट्स, दे आर ट्रेन्ड फॉर इट, है ना? तो उनको चीट करना इतना आसान नहीं होता है। अभी क्या होगा, आपकी जो 11 स्टोरीज हैं उनका जो लेवल होगा वो नॉमिनल होगा। ठीक है, मतलब नॉर्मल लेवल होगा, जो भी आपकी साइकोलॉजी का लेवल है वो। जो 12th स्टोरी है, जो आपने बिना कुछ देखे लिखी है, वो आप घर से प्रिपेयर करके जाएंगे तो वो थोड़ा सा बेहतर होगी। बेसिकली हो क्या रहा है, जो 11 स्टोरीज हैं वो तो सिंपल लेवल की हैं, बेसिक लेवल की हैं, या फिर कई बार खराब लेवल की भी हैं। बट जो 12th स्टोरी है वो तो बहुत अच्छी हो गई क्योंकि वो आपने प्री कंसीव करी थी, पहले से तैयार की थी। ये चीज, ये चीटिंग साइकोलॉजिस्ट को पता चल जाती है दैट दिस स्टोरी इज प्री कंसीव्ड। आप पहले से ही प्रिपेयर करके आए हैं। यहाँ पे आपकी एक जम्बल्ड साइकोलॉजी दिखती है ना, दैट दिस इज यू हैव प्रिपेयर्ड अर्लियर। सो ये बेहतर है कि आप ना करें। एक चीज आई कैन सजेस्ट यू नो, इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग द स्टोरी, स्टोरी रेडी करने से बेहतर है आप चीजों के बारे में जानिए, समझिए और पढ़िए। अपने इंटरेस्ट के बारे में जानिए, समझिए। उससे क्या होता है कि आप वहां पे जाएंगे, आपको जब ब्लैंक स्लाइड मिलेगी, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी एक स्टोरी बना सकते हैं, एंड दैट विल बी सिमिलरली इंपॉर्टेंट, सिमिलरली गुड एज यू आर हैविंग 11 स्टोरीज एज। ठीक है, सो डू नॉट प्री कंसीव द स्टोरीज, एट लीस्ट इन साइकोलॉजी। आई होप इट इज क्लियर। एनीवन एल्स? ठीक है, if you have no issues or no doubts now, we'll just move forward. All right. So I've just taken a sample TAT picture for you. All right. Just look at this picture. What is happening over here? Visible to you? देखो, there is a person sitting over here. यहाँ एक पर्सन बैठे हुए हैं। अब ध्यान से देखिए, है ना, हाउ टू ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली। एम आई ऑडिबल टू एवरी वन ऑफ यू? प्लीज रिस्पॉन्ड वंस। यस सर। चलो, अभी इस पिक्चर को ध्यान से देखना है ना। व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर हियर? देयर इज अ पर्सन, ऑलराइट, सिटिंग इन द चेयर विद अ टेबल ओवर हियर। ठीक है, इस पर्सन को देख के, इनके स्पेक्स देख के और इनके हेयर्स देख के आपको क्या लग रहा है? ही इज अ एल्डरली पर्सन। आफ्टर लुकिंग एट द स्पेक्स and the hairs, what you can see that this is a old person, elderly person. इनकी एज अप्रोक्सीमेट क्या होगी? फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट विल बी 50 to 55 years. आई होप यू वुड बी हैविंग द सेम परसेप्शन अबाउट हिम। और क्या है उसके अलावा? ये दो और बालक खड़े हुए हैं यहाँ पे, देखो, टू मोर बॉयज आर स्टैंडिंग ओवर हियर. After looking at them and their dress up, what I could get that the age for both of these people would be approximate 21 to 25. I hope this is visible for you. The age for these two individuals would be approximate 21 to 25. Then after देखो, किसी भी स्टोरी को परसीव करने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें कैरेक्टर्स जो है. After looking at the characters, what you guys have to do? You have to look at the surroundings. आसपास क्या चल रहा है, कैसा environment है. Environment कैसा है भाई? सबसे पहले तो you would see that so many books are kept over here. Look at the almirah.
देयर आर सर्टेन बुक्स, नो? एल्मीरा के अलावा इनकी डेस्क में भी बहुत सारी बुक्स हैं। ये देखो कितनी सारी बुक्स हैं, ठीक है। बुक्स के अलावा एक देखिए यहाँ पे बेल रखी हुई है, ऑलराइट, एंड कुछ यहाँ पे भी मोटी सी बुक्स रखी हुई हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स। अब इससे क्या पता चलता है इतनी सारी बुक्स कहाँ होंगी? या तो किसी टीचर के ऑफिस में होंगी, या तो किसी लॉयर के ऑफिस में होंगी, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगी, ठीक है। लॉयर जैसा तो ये लग नहीं रहा क्योंकि इसने कोट नहीं पहन रखी है। सो व्हाट यू कैन सी, इसके सामने कुछ स्टूडेंट जैसे लोग भी खड़े हुए हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली, आई विल नॉट स्पीक ऑन इट, बट मोस्ट प्रोबेबली दिस इंडिविजुअल कैन बी अ टीचर और एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर होगा तो इसके सामने जो लोग हैं, इधर दे विल बी देयर एम्प्लॉइज और दे विल बी सम सिविलियंस कमिंग ओवर हियर। इफ ही इज अ टीचर, अगर वो एक टीचर होगा तो ये सामने खड़े हुए दो उसके स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू फ्रेम योर स्टोरी, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि ये तुमने टीचर बनाया फिर बाहर से दो कोई और एम्प्लॉइज ला दिए फिर कुछ ऐसा कर दिया। ट्राई टू कनेक्ट थिंग्स आउट अकॉर्डिंग टू दी पिक्चर, ठीक है। एज क्लियर हो गया, कैरेक्टर्स क्लियर हो गए, सराउंडिंग्स क्लियर हो गई। एक और चीज है, ये जो चेयर्स रखी हुई है, लुक एट दी वुडन चेयर एंड टेबल। All these wooden chair and tables you will only be finding out in the government offices or the schools, ठीक है। तो ये पूरा जो इन्वायरमेंट इसमें दिख रहा है ना, दिस इन्वायरमेंट इज शाउटिंग, ये बता नहीं रहा है, ये आपको चीख चीख के बता रहा है कि सर ये जगह या तो किसी स्कूल की है या तो किसी गवर्नमेंट ऑफिस की है। एंड द पीपल ओवर हियर विल बी ईदर स्टूडेंट एंड टीचर or the people over here would be government employees. So that is how you know look at the picture. अब कुछ चीजें याद रखना, जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अब लोग गलती क्या करते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं तो वो इसको बना देते हैं पुलिस इंस्पेक्टर, इनको बना देंगे कांस्टेबल। भाई थोड़ा सा बेसिक दिमाग लगा के सोचो, ये अंकल पुलिस इंस्पेक्टर जैसे लग रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। उनके पास तो यूनिफॉर्म भी नहीं है। फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि इनको बना देंगे कर्नल साहब, कर्नल साहब बैठे हुए हैं और यहाँ पे दो सिपाही खड़े हुए अग्निवीर के। अब थोड़ा सा सोचो, अगर कर्नल साहब के सामने सिपाही जाएंगे तो उनकी बैरे होगी, उनका ड्रेस होगा, यहाँ पे फित्ती वित्ती लगी होगी, फित्ती नहीं भी होगी तो कॉलर होगा, कुछ तो होगा यार, ड्रेसअप तो होगा उनका। अगर उनकी यूनिफॉर्म ही नहीं है, कर्नल साहब की तो नहीं है, छोड़ो, सोल्जर्स की भी यूनिफॉर्म नहीं है। इफ नन ऑफ देम आर हैविंग एनी यूनिफॉर्म और एनी ड्रेसअप, then how can you make them any army person or police person? So ऐसी silly mistakes नहीं करनी है। Now this is something जिससे कि जो एसएसआर्स होते हैं ना, they would hate it very much, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप अपना जो बेसिक इंटेलिजेंस है वो जानबूझकर बहुत पुअर दिखाते हैं। That basic intelligence should never be shown as a poor intelligence, ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो कभी भी आप पिक्चर को जब अप्रोच करते हैं ना, सो दैट पिक्चर शुड बी ऑब्जर्व बाय यू वेरी केयरफुली। इसीलिए मैंने आपको क्लासेस में कई बार कहा है, कल परसों भी बोला है, आज भी बोल रहा हूं, द 30 seconds which are provided to you for looking at the picture, please use these 30 seconds only to look and observe the picture very carefully. ये मत सोचा करो कि इस 30 सेकंड्स में से मैं 15 सेकंड्स चुरा लूंगा और जल्दी से जाऊंगा 2 लाइन की स्टोरी कर लूंगा। That will not at all be beneficial for you, but that is going to hurt you a lot. वो बेनिफिशियल तो नहीं होगी आपके लिए, लेकिन आपका परसेप्शन और आपकी स्टोरी को खराब जरूर कर देगी। प्लीज ये मत किया करो। उस 30 सेकंड्स के लिए सिर्फ पिक्चर को देखो, कैरेक्टर्स को ध्यान से देखो, कैरेक्टर्स के सराउंडिंग्स देखो, आसपास क्या रखा है, किताबें रखी हैं, चेयर है, टेबल है, एलमीरा है, वहां पे किताबें हैं, पीछे एक दरवाजा है, क्या वहां पे कोई खड़ा है या नहीं खड़ा है, लोगों का ड्रेसअप कैसा है, ड्रेसअप में फॉर्मल पहना हुआ है या फिर कैजुअल पहना है, अगर फॉर्मल पहना हुआ है तो क्या शूज भी फॉर्मल है, टीचर स्टूडेंट लग रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लग रहे हैं या फिर आर्मी इंडिविजुअल लग रहे हैं, जो भी लग रहे हैं, जैसे भी लग रहे हैं, उनको प्रॉपरली परसेप्ट कीजिए प्लीज। सिली मिस्टेक मत किया कीजिए।
और ये सारी चीजें परसेप्ट करने के बाद यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर स्टोरी। एंड आई थिंक 4 minutes आर गुड इनफ टू राइट अ स्टोरी। 4 मिनट बहुत होते हैं डिसेंट स्टोरी लिखने के लिए। और आपको कोई ऐसा थोड़ी है कि नॉवेल लिखना है या फिर 4-5 पेज की स्टोरी लिखनी है। यू जस्ट हैव टू राइट 100 वर्ड्स ऑफ ए स्टोरी, हाफ ऑफ अ पेज। A4 साइज का डोजियर होता है आपका, उसका हाफ आपने स्टोरी लिखनी होती है। सो अगर हाफ में आपको लिखना ही है तो आई थिंक दिस मच टाइम इज गुड इनफ। सो जो परसेप्शन का टाइम है उसे परसेप्शन के लिए यूज कीजिए, जो लिखने का टाइम है उसे लिखने के लिए यूज कीजिए। नाउ आफ्टर दिस सैंपल पिक्चर फॉर यू, एनी डाउट्स एनीवन सो फार? किसी का कोई भी डाउट हो प्लीज डू लेट मी नो वंस अगेन सो दैट वी मे मूव फॉरवर्ड। और थोड़ा जल्दी बताया करो यार, क्योंकि बहुत सारी चीजें आगे करनी है और सबसे इंपॉर्टेंट हाफ साइक टेस्ट करना है आज ही। सो उसके लिए तैयार रहना, पेन एंड पेपर रेडी रखना। वी हैव प्रिपेयर्ड हाफ साइक टेस्ट फॉर यू। पूरा आइडिया लग जाएगा साइक टेस्ट कैसे होता है एसएसबी में। उसके पहले कोई भी डाउट, एनीवन हैविंग एनी डाउट, प्लीज डू लेट मी नो फास्ट। चल कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। अभी क्या है, WAT पे आते हैं। TAT पूरा समझ में आ गया आप लोगों को, आपने बोला नो डाउट, तो फिर आएंगे हम WAT में। ठीक है, अब WAT में क्या होता है पहले भी बताया, बहुत सिंपल सी चीज है। क्या करेंगे, 15 seconds टू लुक एंड रिस्पॉन्ड फॉर ईच वर्ड। ठीक है, क्या होता है, मैंने आपको डोजियर का एक फॉर्मेट बताया, कई सारे पेज होते हैं, है ना, वहां पे आपको TAT की स्टोरीज लिखनी है। द सेम थिंग विल बी हैपनिंग विद WAT एज वेल। क्या होगा, द सेम A4 साइज डोजियर, है ना। WAT के रिस्पॉन्सेज भी अटैच ही होते हैं, एक पिन्ड अप बुकलेट मिलती है आपको, उसी में सारे रिस्पॉन्सेज लिखने होते हैं। अब WAT में क्या होता है, यहाँ पे नंबर्स के साथ रिस्पॉन्सेज मतलब रिस्पॉन्सेज की जगह दी गई होती है ना। जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर यहाँ पे 11, 12, 13, 14 ऐसे करके 60 तक आता है सारे पेजेस में मिला के। व्हाट यू हैव टू डू, लुक एट द स्क्रीन। स्क्रीन में आपके सामने 15 सेकेंड्स के लिए एक वर्ड फ्लैश होगा, कोई भी वर्ड सोच लो। जैसे वर्ड हो गया रिस्पॉन्ड, ठीक है, ये वर्ड आपके सामने फ्लैश हुआ। कितने टाइम के लिए फ्लैश हुआ, 15 सेकंड के लिए फ्लैश हुआ। सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट लुक एट द वर्ड। अब ये थोड़ा सा TAT से अलग है। अलग क्यों है, that in TAT what you guys have to do, that you have to look at the picture, wait for 30 seconds, then write the story। ऐसा करते थे ना, लेकिन WAT में थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे वेट नहीं करना किसी चीज का, जैसे ही ऊपर देखा वर्ड दिख गया तुरंत सिर नीचे करो, पेन लो और रिस्पॉन्स लिख दो। डू नॉट वेट for it to be changed at all, because here 15 seconds are in total you are getting for the response and to observe as well। all right, so क्या करना है, 15 seconds के लिए एक वर्ड फ्लैश होगा, ऊपर देखो वर्ड आया, तुरंत नीचे देखो रिस्पॉन्स लिखो, फिर ऊपर देखो फिर वर्ड आ जाएगा, फिर नीचे देखो रिस्पॉन्स लिखो। द सेम थिंग यू हैव टू कीप डूइंग फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के लिए चलती है एक्सरसाइज। 15 मिनट्स में आपके सामने टोटल कितने रिस्पॉन्सेस आ जाएंगे, कितने वर्ड्स आ जाएंगे, सॉरी, तो टोटल 60 वर्ड्स विल बी गेटिंग। ऑल राइट, सो प्लीज रिमेंबर दैट 15 seconds विल बी गेटिंग टू लुक and to respond for each word, total 60 words, that is how you are getting 15 minutes of time। all right, अब words किस टाइप के आते हैं, लोगों को बड़ा ये सोचने को रहता है यार कि words आते कैसे हैं, which type of words you would be getting। very simple, anything from your surrounding can come। do not ever think कि अरे वैसा वर्ड आएगा या फिर कैसा वर्ड आएगा, आर्मी से रिलेटेड आएगा, एयरफोर्स से रिलेटेड आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। तुम्हारे आसपास देखो, जो दिख रहा है वही आ सकता है। जैसे तुम लोग बैठे होगे बेड पे, बेड कैन कम एज अ वर्ड, और एल्स यू वुड बी सिटिंग इन अ चेयर। चेयर होती है, चेयर तो सबको पता होगी, चेयर कैन कम अप एज अ वर्ड, एज सिंपल एज दैट। टेबल होगी आपके सामने, टेबल आ सकता है वर्ड में। फोन होगा आपके हाथ में, मोबाइल फोन, फोन कैन कम एज अ वर्ड। एनीथिंग, आपका हाथ है, हाथ जिससे आप फोन पकड़ते हुए चलाते हो, हैंड, hand can come up as a word। anything surrounds you will be coming as a word over there।
कोई लिमिट्स या फिर कोई बाउंडेशन नहीं है वहां पे कि वर्ड्स किस टाइप के आने हैं, कैसे आने हैं, कुछ ऐसा नहीं है। कोई भी वर्ड्स आ सकते हैं, लोगो आ सकता है, लैपटॉप आ सकता है, न्यूज़पेपर आ सकता है, टीवी आ सकता है, एनीथिंग कैन कम। ऑलराइट, मैंने कुछ सैंपल वर्ड्स लगाए हैं आपके लिए। देखिए जैसे गेट है। नाउ दिस इज हाउ योर साइकोलॉजी इज टू बी सीन। इसे सुनिए ध्यान से। आप जैसे गेट देख रहे हैं, ठीक है। नाउ आफ्टर लुकिंग एट गेट, इस वर्ड को देखकर आपके माइंड में पहला रिस्पॉन्स क्या आता है? गेट को देखकर फर्स्ट चीज आपके माइंड में क्या आती है? जो भी रिस्पॉन्स आता है दैट इज योर WAT रिस्पॉन्स। नाउ प्रायोरिटी शुड बी दैट यू हैव टू राइट अ फुल सेंटेंस ऑन गेट। गेट पे आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। But suppose due to shortage of time or due to having a blank mind or anything, you could not get a full sentence. So what you are supposed to do? Think about any relative word regarding gate. जैसे gate को देख के आपके दिमाग में क्या आया? Open आया, open लिख दो, आगे बढ़ जाओ। But that can be done, please listen to this very carefully. That can be done only for few response, 1 or 2 or 3. नॉट मोर देन दैट। ऐसा मत करना तुम लोग कि शुरू से लास्ट तक सारा साइनोनाइम्स एंटोनाइम्स लिख के चले आओ, बोलो सर बहुत अच्छा साइकोलॉजी का टेस्ट किया। ये मत करना यार, ठीक है। क्या करना है? द प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी टू राइट अ फुल सेंटेंस ऑन दिस, ठीक है। फुल टेस्ट सेंटेंस लिखने के बाद आपके दिमाग में क्या आएगा? नेक्स्ट वर्ड आएगा, उसको लेके रिस्पॉन्स लिख दो। जस्ट कीप डूइंग द सेम, ठीक है। अब एक चीज आती है, कई लोग इस चीज को लेकर बहुत परेशान होते हैं कि सेंटेंस बनाना कैसे है, एंड दैट इज अ वेरी हैवी ट्रिक। भाई सेंटेंस कैसे बनाएं? हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस विद आई थिंक 10 सेकंड्स और समथिंग विल बी हैविंग। तो 10 सेकंड्स में सेंटेंस बनाए ही कैसे? सो उसके लिए क्या कीजिए, एसोसिएशन के बारे में सोचिए। आपने जैसे देखा ना, इसको क्या बोलते हैं? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ऑलराइट, सो यू हैव टू थिंक अबाउट एसोसिएशन। हाउ टू थिंक अबाउट एसोसिएशन? थिंक अबाउट गेट, फिर गेट से रिलेटेड एक वर्ड सोचो। गेट को देखने के बाद गेट से रिलेटेड एक वर्ड सोचो। वो जो वर्ड आपके माइंड में आया, उस वर्ड के साथ एक सेंटेंस बना लो। सो दैट विल बी अ प्रॉपर सेंटेंस फुल ऑफ रिस्पॉन्स फॉर यू, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। क्या करना है? गेट के बारे में सोचो, गेट से रिलेटेड वर्ड सोचो, उस वर्ड के साथ आपके पास जो रिस्पॉन्स आता है वो रिस्पॉन्स आप यहाँ पे लिख दो। अब एक बहुत बड़ा मिथ होता है यहाँ पे, ध्यान से सुनना प्लीज, इसे प्लीज लिसन टू इट वेरी केयरफुली। एक बहुत बड़ा मिथ आता है, लोग कहते हैं इफ यू आर राइटिंग अ WAT रिस्पॉन्स देन व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, यू हैव टू हैव दैट वर्ड इन द सेंटेंस एज वेल। लोग कहते हैं अगर WAT रिस्पॉन्स लिख रहे हो तो वो जो सेंटेंस है ना, उसमें ये वर्ड होना कंपलसरी है, ऐसा कहते हैं। बट दिस इज अ मिथ। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। दिस इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड फॉर यू। सो व्हाट यू कैन डू, थिंक ऑफ द वर्ड, उस वर्ड से रिलेटेड जो सेंटेंस आता है, दिल खोल के वो सेंटेंस लिख दो। जरूरी नहीं है कि उस सेंटेंस में ये वर्ड आ रहा हो। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, जो सेंटेंस आ रहा है वो लिख दो। इट इज जस्ट अबाउट योर साइकोलॉजी कि वर्ड को देखकर आपके दिमाग में रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। अब उस रिस्पॉन्स में वो वर्ड इंक्लूड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, जस्ट राइट द प्योर रिस्पॉन्स दैट यू आर गेटिंग एंड मूव फॉरवर्ड। करेज है, करेज को देख के आपके दिमाग में क्या सेंटेंस आ रहा है? अब हो सकता है उस सेंटेंस में करेज वर्ड इन पर्टिकुलर आ रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है नहीं आ रहा हो। नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, करेज को लेके जो भी आ रहा है लिख दो। लिख दो इंडियन सोल्जर्स आर फाइटिंग करेजियसली। एनीथिंग वॉट एवर यू गेट इन द माइंड जस्ट राइट इट डाउन। द सेम अप्लाइज विद दिस, ब्रेव, होम, कंट्री, कुछ भी आ रहा है आपके दिमाग में बस लिख दीजिए। ये मत सोचो कि उसमें ये आना चाहिए वो आना चाहिए, ऐसा वैसा कुछ भी। हाँ, कुछ बाउंडेशंस हमें रखनी है अपने साथ। जैसे क्या होता है, जब आपका वैट होता है ना, तो वैट की मार्किंग का एक टाइप होता है। देखो उसकी मार्किंग कैसे होती है मैं बताता हूँ। What they will be doing, suppose you have written 60 responses in your sheet, ठीक है।
60 रिस्पॉन्सेज लिखने के बाद क्या होगा कि योर डोजियर वुड बी गोइंग टू दी साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, अब साइकोलॉजिस्ट को आपने देखा कि यार ऐसा ऐसा लिख रहा है। व्हाट साइकोलॉजिस्ट वुड बी डूइंग, शी और ही वुड रीड द सेंटेंस और द रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड बाय यू। सारे रिस्पॉन्स पढ़ना है और ईच एंड एवरी रिस्पॉन्स वुड बी हैविंग इट्स ऑन मार्किंग। सपोज फर्स्ट रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, उसके मार्क्स आपको मिले 1। सेकेंड रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, उसके भी मार्क्स मिल गए 1। नेक्स्ट रिस्पॉन्स बहुत ही खराब था या फिर निगेटिव साइकोलॉजी थी, यहां पे आपको मिले -1, मतलब 1 मार्क आपका कम हो गया। फोर्थ रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, फिर 1 मार्क्स। फिफ्थ रिस्पॉन्स बहुत खराब था, फिर -1। दिस विल कीप गोइंग। लेकिन फिर बीच में आता है समथिंग कॉल्ड एज क्लीशे सेंटेंस। क्लीशे सेंटेंस या फिर यू कैन कॉल इट एज न्यूट्रल सेंटेंसेस, है ना। सो क्लीशे या न्यूट्रल सेंटेंसेस की कोई रिस्पॉन्स या फिर कोई मार्क्स नहीं होते हैं। सपोज आपने लिख दिया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये तो प्रोवर्ब है, ये तो पूरी दुनिया को पता है ना। इसमें आपकी अपनी थिंकिंग कहां थी, आपकी अपनी कोई थिंकिंग नहीं है, तो इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। व्हाट दे विल डू, दे विल गिव यू 0 मार्क्स एंड मूव फॉरवर्ड फॉर दिस। ये याद रखना। सो जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है उसका 1 मार्क, जो निगेटिव रिस्पॉन्स है उसका -1 मार्क, जो न्यूट्रल रिस्पॉन्स है उसका 0 मार्क। अब ये 60 रिस्पॉन्सेस में सेम होता रहेगा। 60 रिस्पॉन्सेस के बाद आपके मार्क्स काउंट कर लिए जाएंगे। जो भी मार्क्स आ रहे हैं वो आपके साइक के मार्क्स हो जाएंगे, सॉरी WAT के मार्क्स हो जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसको लेके अब किसी के दिमाग में कोई डाउट या कोई मिथ्स हैं तो प्लीज बता दीजिए। एक छोटी सी चीज और बता देता हूं। कुछ चीजें हैं, एक बहुत बड़ी फाउंडेशन फुल ऑफ बाउंड्री होती है, जहां पे हम कहते हैं कि WAT में ये भी यूज करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है ना। तो वो सारी चीजें बताने का तो अभी टाइम नहीं है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। द थिंग्स विच आर कंटेनिंग द प्रोनाउंस शुड नेवर बी यूज्ड। ठीक है, जिसमें किसी का नाम हो, नेम्स शुड नेवर बी यूज्ड। ये नहीं बोलना चाहिए कि स्पर्श इज डूइंग दिस वर्क लाइक दैट और आंचल इज डूइंग दिस वर्क लाइक दैट। ऐसे कोई सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं। मतलब किसी भी सेंटेंस में जहां पे किसी का नाम हो वो सेंटेंस यूज नहीं करने हैं। फिर प्रोनाउंस भी यूज नहीं करने। प्रोनाउंस मतलब ही, शी, इट, आई, वी, you, they, all these pronouns are not to be used at all. ये pronouns नहीं यूज करने। इसके बाद क्या है, idioms नहीं यूज करने हैं। ठीक है, phrases नहीं यूज करने हैं। ठीक है, nothing of these should be used at all। अगर यूज करोगे तो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाओगे, 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हो तो -1 मार्क्स मिलेंगे। तो जहां पे मिल भी रहे हैं वो भी कम हो जाएगा। इससे बेहतर है कि ना यूज करो। ठीक है, ये चीजें याद रखना प्लीज। ठीक है, WAT में किसी को भी कोई भी इश्यू हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज डू लेट मी नो नाउ। Meanwhile, Vishal is asking how to write these sentences, like how to get plus marking. इसकी बहुत सारी चीजें होती हैं देखो विशाल, लेकिन एक बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूं। ऑलवेज राइट योर ऑन थॉट्स इन WAT। योर ऑन थॉट्स, अभी ऑन थॉट्स का मतलब क्या होता है, किसी से कॉपीड नहीं होना चाहिए। जो वर्ड्स मैंने बताए वो वर्ड्स नहीं यूज होने चाहिए। जैसे प्रोनाउंस बताया, प्रोनाउंस नहीं यूज होने चाहिए। किसी का नाम नहीं यूज होना चाहिए। इडियम या फ्रेज नहीं यूज करना चाहिए। कोई भी वेल नोन फैक्ट नहीं यूज करना चाहिए। जैसे लोग लिख देते हैं सन राउंड्स द अर्थ, है ना, या फिर सन इज वेरी हॉट। अब ये बताओ ये कोई सेंटेंस है क्या, इसमें तुमने क्या दिमाग लगाया, कोई दिमाग वाली चीज ही नहीं है। सो व्हाट इज टू बी डन, राइट योर ओन थॉट्स विशाल, है ना। अगर आप अपने थॉट्स लिखते हैं तो आपको +1 मार्क्स मिलेंगे। अगर अपने थॉट्स से हट के आप कुछ लिखते हैं जो आपका अपना नहीं है, किसी और ने बनाया है,
तो फिर उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे या फिर निगेटिव मार्क्स मिलेंगे। एज सिंपल एज दैट। Anyone having any further doubts in WAT, please do let me know. चलो, किसी का नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं क्या करूंगा, एनी वन ऑफ यू हैव टू टेल मी फ्यू रिस्पॉन्सेज जस्ट फॉर दी प्रैक्टिस। ठीक है, मैं आपको वर्ड देता हूं, आप मुझे रिस्पॉन्स बताइए। ठीक है, चलो अभी मैं क्या करूंगा, एक आपको वर्ड देता हूं, आप लोग ओपन हो चैट बॉक्स में, प्लीज राइट डाउन रिस्पॉन्स व्हाट यू आर गेटिंग। ठीक है, क्या वर्ड दिया जाए? चलो, वर्ड मैंने डाल दिया फ्रूट, FRUIT। बताओ, फ्रूट को लेके आपके माइंड में क्या रिस्पॉन्स आता है? जल्दी से रिस्पॉन्स देना है, चैट बॉक्स में देना है, 15 सेकंड्स के अंदर देना है। Any further responses? Please make it fast. चलो, बढ़िया है, अच्छे रिस्पॉन्स आए। अब बताओ, रिस्पॉन्स तो आए, लेकिन आप लोगों ने सेंटेंस कहां बनाए? इट्स हेल्दी इज नॉट अ सेंटेंस एट ऑल। ठीक है, तो ये पहली बात, तो कोई सेंटेंस नहीं बना, दिस इज नॉट अ प्रॉपर रिस्पॉन्स। सेंटेंस के बाद भी दिस इज नॉट समथिंग यू हैव थॉट। तो सबको पता है फ्रूट इज हेल्दी, इसमें थॉट कहां लगा आपका? ऐसे नहीं करना है, ठीक है। सेंटेंस बनाइए थोड़ा सा लंबा। देन टेस्ट गिविंग, अगेन दिस इज जस्ट अ फ्रेज दैट फ्रूट इज टेस्ट गिविंग, इसमें रिस्पॉन्स कहां है? सेंटेंस कहां है? दिस इज नॉट फुल रिस्पॉन्स, ठीक है। इंप्रूव द स्टेमिना, ठीक है, आपने सोचा दैट फ्रूट इज इंप्रूविंग द स्टेमिना, फ्रूट्स हैं स्टेमिना इंप्रूव करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट कांट यू फॉर्म इट इन अ सेंटेंस फॉर्मेट? इसको आप सेंटेंस में क्यों नहीं दे सकते हैं? प्लीज ट्राई टू राइट इट इन अ सेंटेंस वे, ठीक है। देन गुड फॉर हेल्थ, ऑफ कोर्स इट इज नोन टू एवरीवन, इट इज गुड फॉर हेल्थ, वही बात है, इट्स हेल्दी, गुड फॉर हेल्थ, बट वेयर इज द सेंटेंस? आप सोचिए, समझिए और सेंटेंस बनाइए। अगर सेंटेंस नहीं बनाएंगे तो फिर तो मतलब रिस्पॉन्स अधूरा है। ऑलराइट, एक रिस्पॉन्स है फ्रूट्स आर बेनिफिशियल फॉर हेल्थ इफ टेक इन गुड वे, फाइन, थोड़ा सा फॉर्मेशन कर लो। इफ टेक इन गुड वे नहीं होगा, इफ टेकन इन गुड वे होगा, उसको थोड़ा सा बेहतर कर सकते हो, गुड वे की जगह कोई और वर्ड बना दो, थोड़ा सा और थॉटफुल कर सकते हो, लाइक दिस इज समथिंग विच इज नोन टू एवरीवन, कि फ्रूट्स आर बेनिफिशियल फॉर हेल्थ इफ टेकन इन गुड वे। बट इसमें थोड़ा सा और थॉट डालो ना, अपने विचार डालो। आप लोग इतने मैच्योर्ड हो, इतना डीप माइंड है आपका, व्हाट अबाउट दैट डीप माइंड? व्हाई नॉट टू थिंक अकॉर्डिंगली? ठीक है, थोड़ा और सोचो उस पे, क्या कर सकते हो। आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट्स द स्टूडेंट्स रिजल्ट वाज फ्रूटफुल, हाँ दिस इज अ आई थिंक गुड सेंटेंस। काफी अटेम्प्ट के बाद स्टूडेंट्स का रिजल्ट फ्रूटफुल था, ठीक है, अच्छा है। लेकिन अब इसमें ये भी सोचना, देखो दो चीजें होती हैं, कुछ लोग आपको बोलेंगे कि लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं लिखना, you just have 15 seconds, so both the ways are fine. If you think that in 15 seconds you can write long sentence, that is the best you can do, I'm telling you. क्यों? Because long sentence shows better intelligence. तो अगर आप लंबे सेंटेंस लिख रहे हैं तो आपकी इंटेलिजेंस के ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग सेंटेंस की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी के रिस्पॉन्स छूट जाएं। तो उतने लंबे सेंटेंसेस लिखो, उतने लॉन्ग सेंटेंसेस लिखो जितने आप लिख पाओ 10 या 15 सेकेंड्स में। ऐसा नहीं हो कि यार सर ने बोला है इंटेलिजेंस तो दिखानी है तो लंबे लंबे सेंटेंस डाल देंगे, लेकिन उस चक्कर में सिर्फ आधे ही डाल पाएंगे, बाकी के कर ही नहीं पाए। तो ऐसा नहीं करना है ना, ठीक है। देन फ्रूट्स आर गॉड गिफ्टेड टू ह्यूमंस फॉर हेल्दी लाइफ,
Fine, fine. I'll not say very good, I'll not say very bad, but it's a fine sentence. Fruits are God gifted to humans for healthy life. ठीक है, then we should be using it properly. All right. Fruits give us energy. ठीक है, ये भी ठीक है. Just fine. But it can be made a better sentence. तो थोड़ा सा इसको लंबा कर सकते हो आप. थोड़ा सा thought डालो ना इस पे. बैठ के सोचो, एनर्जी देते हैं तो कैसे देते हैं, कैसे यूटिलाइज करनी है, चीजें कैसे काम करेंगी. ऐसा नहीं है ना कि छोटा सा लिख के छोड़ दिया, पीछा नहीं छुड़ाना है बेटा उससे. हम लोग क्या सोचते हैं कि एक सेंटेंस आए, इससे पीछा छुड़ाना है, जल्दी से भागो आगे. ऐसा नहीं करना है. उस पर थॉट्स डालो, उसके बारे में सोचो. अगर कोई अच्छी चीज दिमाग में आ रही है उसके साथ लिखो, फिर आगे बढ़ो. ठीक है. आई होप यू हैव गॉट द आइडिया रिगार्डिंग द WAT. एक और आया, समथिंग दैट गिव्स अस द जॉय ऑफ नेचर. इवन दैट इज फाइन, दैट इज गुड. ये भी ठीक है. इसको भी थोड़ा सा और थॉटफुल कर सकते हो, बट दैट इज फाइन. ठीक है. अभी चलो, anyone having any doubt so far in WAT in particular? WAT को लेके किसी को कोई भी डाउट हो, please do let me know now. Then we would move forward for the other sections. जल्दी बताइए please. चलो फिर आपने बोल दिया नो, तो चलते हैं आगे. All right, after WAT, we'll be having one more very important psychological test that is called as situation reaction test, commonly known as SRT. Situation reaction test को क्या बोलते हैं शॉर्ट में? SRT. SRT में क्या होता है? Again, total 60 situations in total. How much time you would be getting? 30 minutes, है ना? अब ये देखना, थोड़ा सा ध्यान से सुनो इसे प्लीज. प्लीज लिसन टू इट केयरफुली. एसआरटी का पैटर्न भी टीएटी और डब्ल्यूएटी से थोड़ा सा अलग है. कैसे अलग है भाई? टीएटी में आप क्या करते थे, एक पिक्चर फ्लैश हुई, उसके बाद 4 मिनट का टाइम मिला, 4 minutes ऑफ टाइम यू हैव गॉट, यू हैव टू राइट अ स्टोरी इन दैट. देन डब्ल्यूएटी में क्या करते थे, यू विल बी हैविंग दैट वर्ड फॉर 15 seconds. So you have to look at the word in the given 15 seconds and you have to write down the response that you have. यहाँ पे टाइम बाउंडेशन इन पर्टिकुलर एक एक रिस्पॉन्स के लिए अलग है. जैसे टीएटी में क्या है, 4 minutes फॉर वन स्टोरी. डब्ल्यूएटी में क्या है, 15 seconds फॉर वन स्टोरी. So suppose in 15 seconds if you could not write that response is gone up for you. You cannot get that again. All right, that is story which you are writing in 4 minutes or 15 seconds. If you are not done, then you cannot get it again. But SRT में ऐसा नहीं होता है. SRT में क्या होता है? SRT में they will be giving you sheet again. अभी क्या होती है, सिंगल शीट ही होती है ना. डोजियर जो मैंने आपको बताया था, डोजियर वुड बी सिंगल और सिमिलर फॉर एवरीथिंग. डोजियर में रिस्पॉन्सेस की जगह होती है. ठीक है, A4 साइज का है. जगह में क्या है, वहां पे लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरा ऐसे 60 तक लिखा होता है. ठीक है. अब 60 रिस्पॉन्सेस के साथ साथ आपको एक क्वेश्चन बुकलेट भी दी जाती है सिर्फ एसआरटी के लिए. क्वेश्चन बुकलेट में क्या होगा, यहाँ पे 60 प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस वुड बी रिटन फॉर यू. ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 कर करके 60 situation would be written in the question booklet. Now, why is it different? SRT अलग क्यों है? क्योंकि 60 प्रॉब्लम्स या सिचुएशन पढ़नी आपको क्वेश्चन बुकलेट से है, लेकिन इसके रिस्पॉन्स आपको डोजियर में लिखने हैं, इसलिए अलग है ये. तो जैसे आपने क्या किया, ये पहला वाला देखा, पहला वाला आपने सिचुएशन पढ़ा यहां से, उसके बाद जो रिस्पॉन्स आपके माइंड में आया वो आपने यहां लिख दिया, डोजियर में लिख दिया. फिर सेकंड वाला आपने पढ़ा, जो रिस्पॉन्स आया वो यहां पे लिख दिया डोजियर में. फिर थर्ड वाला आपने पढ़ा, जो रिस्पॉन्स आया वो यहां पे डोजियर में लिख दिया. द सेम विल बी गोइंग ऑन फॉर
60 रिस्पॉन्सेस ऐसा होता है. दैट इज व्हाई एसआरटी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टेस्ट. ठीक है, यहां पे आपको फॉर ईच एंड एवरी रिस्पॉन्स यू आर नॉट हैविंग एनी शॉर्टेज ऑफ टाइम, बट इन टोटल यू आर हैविंग वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम. क्यों? बिकॉज 60 रिस्पॉन्सेस के लिए, फॉर 60 रिस्पॉन्सेस you guys are having 30 minutes in total. 60 रिस्पॉन्स के लिए कितने हैं भाई? 30 मिनट्स है आपके पास. अब 30 मिनट्स में 60 रिस्पॉन्स करने हैं, मतलब एक रिस्पॉन्स के लिए आपके पास कितना हुआ? 30 seconds फॉर ईच रिस्पॉन्स. एम आई राइट? 30 seconds फॉर ईच रिस्पॉन्स. मैं कह रहा हूं चलो आप 30 seconds नहीं दे रहा, 40 seconds भी दे दो. बट कई बार क्या होता है ना, द पीपल वुड बी गिविंग मोर देन 40 seconds. वो लोग क्या करेंगे, एक सिंगल रिस्पॉन्स के लिए कई बार 2 minutes, 3 minutes or something they will be providing on. If that is how you go, then you will be losing a lot of time. You can never complete all 60 situations. And that is very troubling for you. So what is to be done? Instead of not having any individual foundation for the situation reactions, still you have to run very fast for yourself. If you do not run very fast, then you will not be able to complete all the responses. ठीक है, बहुत तेज चल रहा है. After 30 minutes, please stop writing irrespective of the number of SRTs attempted. जैसे ही सामने एसएसएस जो प्रेजेंट हैं उन्होंने कहा टाइम इज अप, प्लीज स्टॉप राइटिंग, कीप योर पेन्स डाउन. यू हैव टू कीप योर पेन्स डाउन. उसके बाद एक भी मिनट के लिए या फिर एक भी सेकंड के लिए नहीं लिखना है. प्लीज डू नॉट थिंक 1 मिनट का टाइम मिलेगा, थोड़ा और लिख लूंगा, ऐसे प्लीज मत करना. आपके मार्क्स कटेंगे, निगेटिव में जाएगी. सो क्या करना है, द मोमेंट दे से प्लीज स्टॉप राइटिंग, कीप योर पेन्स डाउन, टाइम इज अप, यू जस्ट कीप योर पेन डाउन. जितनी भी एसआरटी हुई हैं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है. आई हैव सीन पीपल रिकमेंडेड विद 45 एसआरटीज एज वेल. मैंने खुद ने 44 45 एसआरटी करी थी एंड आई हैव गॉट रिकमेंडेड. मैं उसमें हो गया था, मतलब एसएसबी मेरा क्लियर हो गया था. तो ये कभी मत सोचना that until and unless you write all 60 SRTs, then only you can get recommended. Nothing like that. But at least 40-45 SRTs you should be writing. उससे कम लिखोगे तो थोड़ा सा मतलब इंटेलिजेंस के मार्क्स कम होते हैं अगेन. ठीक है, चलो फिर क्या है, एक बार और पढ़ते हैं एसआरटी के बारे में. वेरी सिंपल है ना. दिस इज अ टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन, है ना. आइडिया राइटिंग टेस्ट बोलते हैं, इसीलिए कई लोग इसको. इमेजिनेशन का मतलब ये आपको मजबूर करता है ये सोचने के लिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आई, देन हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड. बेसिकली दे आर अगेंस्ट टेस्टिंग योर साइकोलॉजी इन टर्म्स ऑफ योर current life. That is how they see that after becoming an officer, how would you be responding to the things coming in front of you, है ना. जब आपके सामने actual problems आएंगी in your life as an officer, then how would you be responding in that? So that is why they want to test you further in all these SRTs, in all these situations. ठीक है, please remember this is a test of your imagination in particular, most commonly known as SRT. ठीक है, and this test also assesses your reactions ability to tackle day-to-day problems of life. मैंने बताया ना, अगर as a civilian आप problems को tackle कर पा रहे हैं, तो फिर as an officer after the training you will be tackling the problems better. हाँ, वहां पे problems का level और type अलग होगा. So they just want to test how do you react in the different type of pressure situations in your life. All right, as I have told you that 60 situations would be presented to you, and we as assessors would actually like to know that how you would feel, think and act in this situation. आपके actions बहुत important है, हमेशा याद रखना. So we want to know that how you want to feel, think and act in these given situation, whatever we have provided to you. Then after, there are no right or wrong answers. Please remember this. एसआरटी में कई लोग आपको बोलेंगे कि ये गलत एसआरटी है, ये सही एसआरटी है. ऐसा कुछ नहीं होता है.
There are no right and wrong answers with respect to these situations. Everyone is like to read the situation in his or own way. So आपने क्या करना है, आपको जो भी सिचुएशन दी गई है वो आपको अपने खुद के तरीके से समझनी है. Your own way should be applied. ठीक है, जैसे मुझे आपने बोला आप बाहर निकल रहे हैं, वहां पे दो लोगों की लड़ाई हो रही है, तो आप क्या रिएक्ट करेंगे? तो मेरा रिएक्शन कुछ और हो सकता है मैं उन्हें देखकर चुपचाप अपने रास्ते चला जाऊं, या फिर कोई और लड़का होगा वो सोचेगा नहीं नहीं इसमें शामिल होते हैं, इनको शांत कराते हैं, भाई क्यों लड़ रहे हो, गलत बात है. या फिर तीसरा लड़का होगा बोलता है चलो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, अगर लड़ी रहे हैं तो मैं भी मारपीट कर लेता हूँ. चौथा लड़का होगा बोले चलो पुलिस को बुलाओ, इनको सबक सिखाते हैं, अंदर कर देंगे. पांचवा होगा बोले चार लड़के और लड़ाओ, लड़ाई आगे बढ़ाते हैं. काफी अलग अलग सिचुएशन के रिएक्शन हो सकते हैं, है ना. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव योर ऑन रिएक्शन ऑन ईच एंड एवरी सिचुएशन. ऐसा कभी मत सोचना कि ये रिस्पॉन्स सही होगा या गलत होगा. आपका जो अपना रिस्पॉन्स है, you just give the same response. All right, then as I have told you, do not spend too much time in thinking out the answer to the situation. Otherwise what will happen, you will be losing your time. So what you are supposed to do, you write quickly the answer that comes to your mind first in the answer sheet provided to you. बस ये करना है, जो भी आपके दिमाग में सबसे पहले आए उसे आप लिख दीजिए और आगे बढ़ जाइए. ठीक है, फिर मैंने कुछ एग्जांपल एसआरटीज कलेक्ट करी हैं आपके लिए. क्या एसआरटीज हैं, ध्यान से सुनना, और आप लोग सो नहीं रहे हो ये बताने के लिए प्लीज जल्दी से चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करना. सो रीड द फर्स्ट एसआरटी. He has been served with a challenge by the college bully because he had reported against him to the principal when the latter was trying to beat up his friend. He. अब बताओ अपना रिस्पॉन्स जल्दी से लिख के बताओ चैट बॉक्स में क्या करोगे. एक बार मैं समझा भी देता हूं. He has been served with a challenge by the college bully. कॉलेज में कोई बुली था, उसने उसको चैलेंज किया. क्यों? क्योंकि उसने उस बुली के अगेंस्ट में प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर दी थी. क्यों रिपोर्ट करी थी? बिकॉज दैट बुली, लेटर मतलब बाद वाला कौन है? बुली है. बुली वॉज ट्राइंग टू बीट अप हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड को मारने की कोशिश कर रहा था, तो उसने उसकी शिकायत कर दी. किससे शिकायत कर दी भाई? प्रिंसिपल से शिकायत कर दी. अब वो क्या कर रहा है? चैलेंज दे रहा है उसको, है ना, लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है. सो व्हाट ही वुड डू, ये ही के आगे का जो रिस्पॉन्स है सिर्फ वो लिखना है आपने. ठीक है, सो आई विल कॉल द स्टूडेंट वायलेंट कमिटी so that they can handle the situation more effectively. Very nice. और क्या है आंसर बताइए, बाकी लोगों के आंसर्स बताइए, जल्दी बताइए प्लीज. यू डू नॉट हैव दिस मच ऑफ टाइम. लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज मूव फास्ट. दिस रिस्पॉन्स इज फाइन, है ना. कमिटी वगैरह को बताना है, जो बताना है सही है, ठीक है. यार आप लोगों की टाइपिंग बहुत धीमी है, लगता है उससे कॉल पे बात करते हो, मैसेज में करते हो तो टाइपिंग की स्पीड अच्छी होती. मेक इट क्विक गाइस, मेक इट क्विक, आंसर इट क्विकली. अगर आंसर नहीं आ रहा है तो कुछ भी लिख के डाल दो. यस, नो, सॉरी, डोंट हैव आंसर, एनीथिंग. सर एक बार सिचुएशन रिपीट करना. Situation is shown to you, no, in your screen. Isn't it visible? स्क्रीन पे देखिए सिचुएशन लिखी हुई है. He has been served with a challenge by the college bully because he had reported against him to the principal when the latter was trying to beat up his friend. He. ठीक है, आप लोग रिस्पॉन्स करते रहो, तब तक मैं आगे की चीजें देख लेता हूँ. ठीक है, सेम वे we'll be having very similar situations in the SSB as well. ठीक है,
क्या कैसे रिस्पॉन्स करना है आप कर लेना। एक छोटी सी चीज मैं बताता हूँ, जो भी रिस्पॉन्स आए उनसे जो मुझे समझ में आया। आप लोग क्या लिख रहे हो, आप लोग अपने साइड से आंसर लिख रहे हो, है ना, इन दी present form or your self form. I will call the student violence committee. So you do not have to write as I will do something. That is why they have given already second person he. It means what he would do. Definitely you have to answer what you would do, but not in this formation of the sentence. Formation कैसे करना है? He would call the student violence committee so that they can handle the situation more effectively. All right. Again, आपने भी ये लिखा है I will report the situation to discipline committee so that they will manage it accordingly. ठीक है, response is fine, but the way of giving the response is not fine. आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, एक होता है फर्स्ट पर्सन, देन द सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन। तो ये जो भी रिस्पॉन्स है वो हमेशा सेकंड पर्सन में होना चाहिए या फिर थर्ड पर्सन में होना चाहिए। मोर इफेक्टिव इज हैविंग द रिस्पॉन्स इन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कैसे, जैसे उसने लिख दिया ही, दैट इज वाई देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, उन्होंने लिख के दिया है ही। इट मींस दे वांट यू टू गिव द रिस्पॉन्स इन थर्ड पर्सन। ठीक है, व्हाट ही वुड डू। So he will report this situation to discipline committee so that they will manage it accordingly. All right. The very same SRTs we are having further. During winter, he was once returning alone from a late night show when suddenly it started raining heavily. So what he would do? Again, the response should be in third person. So वो क्या करेगा ये बताना है। ठीक है। The same way, he was doing private tuitions in order to finance his higher studies as his father was a poor man. ठीक है, when the exam drew near, he found he was not fully prepared. Therefore, he, again, what he would do as an individual. ठीक है, तो he का रिस्पॉन्स लिखना। एक रिस्पॉन्स है, he will run to safe place to hide and protect himself from being wet. अच्छा, ये रनिंग हेविली, ठीक है। अब मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं एसआरटीज में क्या करना है। एसआरटीज में ऑलवेज ट्राई टू गिव लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सेस, है ना। सो दो तीन चीजें हैं, प्लीज ध्यान से सुनना, है ना, प्लीज लिसन टू इट केयरफुली। व्हाट यू सपोज टू डू, do not give any response to any SRT in one single line. एक सिंगल लाइन का रिस्पॉन्स कभी मत देना, है ना। जैसे मैं ऐसा करूंगा जिससे कि ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं करना। दिस इज नॉट द राइट वे। मतलब ठीक है, बट ये दिस विल नॉट गिव यू मार्क्स। व्हाट इज टू बी डन, राइट द रिस्पॉन्स इन 3-4 शॉर्ट लाइन्स। शॉर्ट लाइन्स मतलब जैसे he went to a shady place, took a shelter, then when rain stopped, came back home. अब इसमें क्या हुआ, you have written 3-4 responses. So this shows more of your intelligence. यहां पे आपको इंटेलिजेंस के मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। So do not ever write single response in one single line. क्या करना है, 4-5 लाइन का रिस्पॉन्स लिखना है। ठीक है, ये याद रखना। एसआरटी में डू नॉट राइट वन सिंगल रिस्पॉन्स ऑफ अ लॉन्ग लाइन, बट राइट 4-5 शॉर्ट लाइन्स रिस्पॉन्स। ठीक है, अब इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव एक्सप्लेन्ड यू हाउ टू राइट रिजेक्शंस फॉर दिस, बट अभी के लिए प्लीज इतना याद रखना। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली द आइडिया ऑफ एसआरटीज, हाउ यू वुड बी गेटिंग इन दी एसएसबी। ठीक है, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे चीजें टैकल करनी है, वो मैंने आपको बता दिया है। नाउ एनी वन ऑफ यू हैविंग एनी डाउट्स और एनी प्रॉब्लम्स विथ एसआरटी और इन टर्म्स ऑफ एसआरटी, प्लीज डू लेट मी नो फास्ट, और थोड़ा जल्दी बताना, क्योंकि हमको अभी हाफ साइड टेस्ट भी करना है। आई विल बी शोइंग यू द पिक्चर्स एंड एवरीथिंग सो दैट यू मे राइट योर रिस्पॉन्स डाउन। फिर उसका हम पर्सनल असेसमेंट भी करेंगे। We'll write the half cycle test, then we'll do personal assessment as well. So please stay tuned, and for now please do let me know any doubts if you are having regarding SRTs in particular. SRT को लेके कोई भी डाउट हो प्लीज बताइए, जल्दी बताइए।
ठीक है, चलो, इफ यू डू नॉट हैव एनी डाउट्स, सिर्फ एक दो चीजें हैं, मैं एक बार और आपको मतलब बता देता हूं, एक बार और नहीं अभी बता ही देता हूं, ध्यान से सुनना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एग्जाम में भी ऐसे ही आए ये सब? हाँ, ऐसे ही एसआरटीज आती है। एक्चुअली द एसआरटीज दैट आई एम शोइंग यू नो, जो एसआरटीज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एसएसबी की एसआरटीज ही हैं। दैट इज व्हाट यू गेट इन द एसएसबी। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, ये यहाँ पे ब्लैंक होगा, बट जो रिस्पॉन्स होता है वो आपको अपना जो डोजियर होगा ना वहां पे लिखना होगा। तो आंसर शीट अलग होगी, क्वेश्चन बुकलेट अलग होगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं लिखना। मैंने बताया ना अभी आपको एग्जांपल देखिए पिछली स्लाइड में कि क्वेश्चन बुकलेट अलग मिलता है, आंसर शीट अलग मिलती है। तो यहां से आपने सिचुएशन देखनी है और रिएक्शन जो है वो बुकलेट में डालना है। अब ध्यान से सुनो, प्लीज लिसन टू इट वेरी केयरफुली। दो चीजें हैं, कभी भी एसआरटी का जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो पास्ट फॉर्मेट में ही लिखना चाहिए, पास्ट टेंस में ही लिखना चाहिए। जैसे ये लिखा है ही, सो यू हैव टू राइट व्हाट ही डिड, व्हाट ही हैव डन। ऑल राइट, he had done. Whenever you are writing any reaction for the situation, please write in past tense format only. कभी भी SRT जो होती है वो past tense के फॉर्मेट में ही लिखी जाती है, ये हमेशा याद रखना, because SRTs are always for past tense। ये पहली चीज याद रहेगी। दूसरी चीज क्या है, मैंने आपको भी बताया कि रिस्पॉन्स जो है एक सिंगल सेंटेंस में नहीं होना चाहिए, 4-5 सेंटेंस का होना चाहिए। सो इट डज नॉट मीन कि 4-5 सेंटेंसेस में रिस्पॉन्स लिखना है, बट इट मींस शॉर्ट रिस्पॉन्सेस लिखने हैं 4-5। शॉर्ट रिस्पॉन्सेस का मतलब फ्रेजेस लिखने हैं, छोटे छोटे रिस्पॉन्सेस 4-5 लिखने हैं। इंस्टीड ऑफ राइटिंग वन सिंगल रिस्पॉन्स, यू हैव टू राइट 4 रिस्पॉन्सेस, 3-4 रिस्पॉन्सेस। 4-5 छोटे रिस्पॉन्सेस से क्या होगा, 1-2 आपके शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स आ जाते हैं और 1-2 आपके लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स आ जाते हैं। तो ये फायदा मिलता है इसका। ठीक है, चलो, अब कोई डाउट नहीं है तो एसआरटी से आगे चलते हैं। आगे कहां चलेंगे, एसडी पे आएंगे। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट बहुत सिंपल सा टेस्ट है, लेकिन बहुत ट्रिकी भी है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, यू विल बी गेटिंग 15 मिनट्स ऑफ टाइम टू टैकल दिस टेस्ट, है ना। अब इस 15 मिनट्स में आपको क्या करना है कि आपको 5 पैराग्राफ दिए जाते हैं। यू हैव टू हैव 5 पैराग्राफ्स टू राइट ऑन। 5 पैराग्राफ्स में क्या लिखना है, सबसे पहले तो यू हैव टू राइट योर पेरेंट्स ओपिनियन, what your parents think about you. The second is you have to write what your friends think about you. What is your friends' opinion about you? Then third is your teachers or your employers' opinion. What your teachers or employers think about you. And the fourth is your self-opinion. What do you think about yourself? All right. इन सबके बाद आपको लिखना है improvement what you want to see in yourself. So basically, what do you want to become in future? ठीक है, ये 5 पैराग्राफ आपको लिखने हैं। अब इसका जो वॉइस नॉट क्लियर, एनीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, माय वॉइस इज क्लियर और नॉट, बताइए प्लीज। ठीक है, सही आ रही है यार, आप अपना नेट चेक करो एक बार, कनेक्शन चेक करो, वॉइस तो सही आ रही है। देखो, इंप्रूवमेंट विद इन योरसेल्फ मतलब व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर, आप अपने आप में क्या इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोफेशनली, बट इट इज अबाउट योर ऑन ह्यूमन बीइंग एज वेल। एज अ पर्सन, हाउ डू यू वांट टू बिकम और व्हाट डू यू वांट टू बिकम ओवर फर्दर। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट एसडी। अब एसडी में क्या है, डू नॉट राइट सिंगल लाइन्स रिस्पॉन्स, वर्ड रिस्पॉन्स। उस दिन कोई बोल रहा था कि एक वर्ड में रिस्पॉन्स देना है या फिर एक लाइन में रिस्पॉन्स देना है। बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पे पैराग्राफ में रिस्पॉन्स देना होता है, याद रखना। यू हैव टू राइट पैराग्राफ रिस्पॉन्स। ठीक है, यू हैव टू राइट अ फुल पैराग्राफ अबाउट इंडिविजुअल। जैसे पेरेंट्स के ओपिनियन के बारे में एक पैराग्राफ बनेगा, फ्रेंड्स के ओपिनियन के बारे में एक पैराग्राफ बनेगा,
टीचर्स या एम्प्लॉयर्स के ओपिनियन के बारे में एक पैराग्राफ बनेगा। ऐसे करके 5 पैराग्राफ टोटल लिखने हैं, ठीक है। पांचों पैराग्राफ लिखने के लिए आपके पास 15 मिनट्स का टाइम होता है। 15 मिनट्स में कंप्लीट करना है। When the time is over, you have to give the dossier back to the assessors over there. Anyone having any doubts in SD so far? SD में किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज बताइए, अदरवाइज we'll move forward for the test. मिनिमम एसडी में इट्स बेटर टू हैव 30 वर्ड्स इन टोटल। 30 वर्ड्स। अब देखो जो 30 वर्ड्स होते हैं ना, उसको कभी काउंट मत किया करो। 30 वर्ड्स का मतलब ये नहीं कि तुम एक एक करके काउंट कर लो कि हाँ 30 हो गए। इट मींस जो 100 वर्ड्स होते हैं ना, सपोज दिस इज अ पेज, ध्यान से देखो इसे। सपोज दिस इज अ A4 साइज पेज फॉर यू। इफ यू आर राइटिंग 100 वर्ड्स, इट मींस यू आर राइटिंग फुल पेज। 100 वर्ड्स का मतलब होता है फुल पेज। इफ यू आर राइटिंग 50 वर्ड्स, इसका मतलब है हाफ पेज, ठीक है। इफ यू आर राइटिंग 30 वर्ड्स, इसका मतलब हाफ से थोड़ा कम। सो व्हाट वी वुड सजेस्ट यू, ईदर टू राइट 30 वर्ड्स टू 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स से ज्यादा मत लिखना, इससे ज्यादा लिखोगे तो कुछ ज्यादा ही इलेबोरेटिव हो जाते हो तुम लोग, और टाइम भी नहीं बचता है उसके लिए फिर, है ना। सो व्हाट इज टू बी डन, जो एसडी का रिस्पॉन्स होता है दैट शुड बी 30 to 50 वर्ड्स। इट मींस क्वार्टर टू हाफ ऑफ अ पेज, इतना ही एसडी लिखना होता है, ठीक है। चलो, सिंस यू गाइज हैव नो रिस्पॉन्सेस फर्दर, सो व्हाट यू बी डूइंग, वी विल मूव अहेड फॉर द टेस्टिंग्स नाउ। टेस्टिंग्स में क्या करना है, आपका हाफ साइक टेस्ट होगा। हम आपके सामने एक पीपीटी प्रेजेंट करेंगे। वी विल प्रेजेंट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ यू। उसमें क्या होगा, यू विल बी हैविंग 6 स्लाइड्स। क्या होगा, बेसिकली यू विल गेट 5 पिक्चर्स। आपको क्या करना है, 5 पिक्चर्स पे 5 स्टोरीज लिख देनी है। देन व्हाट विल हैपन, 6th वुड बी अ ब्लैंक पेज। तो मैंने क्या बताया था, ब्लैंक पे भी एक स्टोरी लिखनी है 6th में। उसके बाद वी विल गिव यू 10 WATs। चलो WAT आज नहीं करते हैं, टाइम कम है, ऐसा है ना, सिर्फ TAT ही करते हैं, बिकॉज वी आर ऑलरेडी 8:30 तो हो ही गए। चलो, so since we are doing half side test, no, so we will only do TATs for today, ठीक है। TAT मतलब स्टोरी लिखनी है, that is the most important part for you, ठीक है। So what will happen, 5 pictures 5 stories। 6th जो होगी ब्लैंक स्लाइड होगी। ब्लैंक स्लाइड के लिए भी एक स्टोरी लिखनी है। ये सारी एक्सरसाइज अभी करेंगे। उसके पहले आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बताइए that how many of you are attending the half psych test। चैट बॉक्स में लिख के बताओ how many of you are attending the half psych test। कितने लोग अटेंड कर रहे हैं, उसमें लिख दो attending। राइट, अटेंडिंग फास्ट। और एक छोटा सा सरप्राइज और है, व्हाट विल हैपन, व्हाटएवर यू वुड राइट इन हाफ साइक टेस्ट, उसका रिस्पॉन्स आप हमें पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजिएगा PDF बना के। तो व्हाट विल हैपन, लिसन टू इट केयरफुली। यू विल राइट हाफ साइक टेस्ट, इसका मतलब आप 6 स्टोरीज लिखेंगे। यू विल राइट 6 स्टोरीज।
यू राइट मेक अ पीडीएफ ऑफ एवरीथिंग। इन स्टोरीज का आप पीडीएफ बनाइए और ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे आप मुझे सेंड कीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप पे मतलब ग्रुप पे नहीं डालना है, पर्सनल मैसेज करके डालना है। जैसे ही आप हमें इसका टाइम है, यू कैन गिव इट बाय आफ्टर हाफ एन आवर समथिंग। जैसे ही आप हमें अपने रिस्पॉन्सेस पीडीएफ बना के व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, हम उसका असेसमेंट करवाएंगे यहाँ अपनी टीम से। असेसमेंट के बाद कल आप लोगों को इंडिविजुअल फीडबैक दिया जाएगा। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू गाइस, कि आप क्या सही लिख रहे हैं, क्या गलत लिख रहे हैं, क्या अच्छा लिख रहे हैं, क्या बुरा लिख रहे हैं। एवरीथिंग वुड बी टोल्ड टू यू। So, what is supposed to do? Write the stories in the given time. अभी तुरंत ही लिखना है ना, 4 मिनट का टाइम मिला तो 4 मिनट में ही लिखना है। ऐसा नहीं कि उसको सेव करके हम बाद में लिख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ ओनली, दैट इज व्हाई दिस इज साइट टेस्ट नो, तुरंत होगा। सो स्टोरीज लिखनी है, उसकी फोटो क्लिक करके पीडीएफ बनानी है, पीडीएफ बना के पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजना है कंपनी नंबर पे। उसके बाद हम आपको कल आफ्टरनून टाइम पे इंडिविजुअल फीडबैक देंगे। ठीक है, चलो कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है, चलो। सो व्हेन यू ऑल आर रेडी, प्लीज डू लेट मी नो दैट यू आर रेडी। वी विल स्टार्ट द साइट। उसके पहले क्या होगा, ठीक है। सो वंस यू गाइस आर रेडी, आपके सामने जय सर आएंगे, वो आपको साइक की ब्रीफिंग देंगे, कैसे करना होता है। आफ्टर द ब्रीफिंग ही विल शो यू पीपीटी। पीपीटी का फॉर्मेट कैसा रहेगा, प्लीज ध्यान से सुन लो, बाद में मत बोलना कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। क्या होगा, फॉर 30 सेकेंड्स वन पिक्चर वुड बी शोन टू यू। आफ्टर 30 सेकेंड्स दैट पिक्चर वुड बी डिसअपियर्ड। जैसे वो पिक्चर डिसअपियर हो जाएगी, you will be having 4 minutes to write the story. In this 4 minutes you have to write the story. After 4 minutes again 30 seconds, ठीक है, after 30 seconds again 4 minutes to write the story, ठीक है। this will keep going on for 5 pictures। 5 पिक्चर के बाद क्या होगा, 30 सेकेंड के लिए ब्लैंक स्लाइड आएगी आपके सामने। अब उस बैंक स्लाइड को लिखने के लिए भी, वहां पे भी स्टोरी लिखने के लिए आपके पास 4 मिनट्स होंगे। So this will keep going on till the last. What you're supposed to do? Look at the picture for 30 seconds, then write a story. Again look at the picture, then write a story. Keep going on. ठीक है, रुकना मत बीच में, नहीं तो इस पिक्चर चली जाएगी, स्टोरी नहीं लिख पाओगे, रिस्पॉन्स नहीं आएगा। क्वेश्चन है सर, मेरा एक क्वेश्चन है जीडी का, क्या आप बता सकते हैं अगर जीडी में कोई एक बंदा सही परफॉर्म करता है और ग्रुप में कुछ बंदे नहीं कर पाते, तो क्या वो बंदा लिया जाएगा जो सही परफॉर्म कर रहा है, या पूरा ग्रुप? ऑब्वियसली वो बंदा लिया जाएगा, बट तुम्हें ये भी देखना है कि डू नॉट हैव टू प्ले योर ऑन इंडिविजुअल गेम। अपना पर्सनल गेम नहीं खेलना है, परफॉर्म करना है, लेकिन ग्रुप के साथ में परफॉर्म करना है। अगर ग्रुप के साथ में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, देन ऑब्वियसली यू वुड बी टेकन इन, आपको अंदर लिया जाएगा, इसमें कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आप लोग रेडी है ना फिर? सो जय सर आएंगे, आपको ब्रीफ करेंगे और साइक टेस्ट होगा। क्या करना है, एक नंबर लिख लो, चैट में हम आपको एक नंबर डाल देंगे, कंपनी नंबर। सो आपने साइक का पूरा रिस्पॉन्सेज लिखने के बाद उस नंबर पे पीडीएफ बना के सेंड करना है। उसका हम असेसमेंट करेंगे और कल आपको पूरा असेसमेंट वर्ड टू वर्ड बताएंगे, कैसे क्या चीजें आपने सही की है या गलत की है। ठीक है, वेट फॉर 1 मिनट, जय सर विल कम एंड स्टार्ट विद एवरीथिंग। थैंक यू।
Anji, good evening to all of you. How are you all? All are fine? Ready for the test? Okay, good. So before starting the test, as Anlak sir already mentioned you regarding the procedure, and in the same way we are going to conduct the test. There will be 5 pictures and last slide will be blank. Okay. So at the time of last slide for the 30 seconds when it is visible to you, there will be a sound. Okay. After every picture also. So sound means you need to see the display, like whether the picture is coming or not. Okay. So I'll just tell you, like first picture will be there for 30 seconds, then there will be a sound means now you have to write the story. Then after writing this after 4 minutes there will be again a sound. That means you need to look up to the screen and see the next picture for next 30 seconds. Similarly, these things will go up to fifth picture. Then after fifth picture you will be writing story for 4 minutes. Then you see a blank, you will see a blank slide for next 30 seconds, and after 30 seconds you will write your final blank story. Okay. So just I think Radhika, you just joined this session, or you will be listening this session since beginning. Just please mention that we are, because we are going to start site test. If you haven't seen the session completely, then it's fine. You can be observer. One more thing. Okay, it's fine, Radhika. Just have experience whatever they are doing right now. And one more thing, those who are participating and those can turn on the camera, please turn on their camera so that it will be clearly visible that you are writing it properly. Screen will be visible to you continuously for next 20 to 25 minutes because it is a half site test. So it will last up to 20 to 25 minutes. Make sure you will be fully attentive throughout this process. Okay, do not miss anything. Clear to all of you? Clear? And my screen is visible to you all? Okay, so we are starting the test. Get ready with your pen, notebook. You can, if you have a long register, you can divide your page, A4 size page, into 2 halves. One half, one story, second half, second story. Back to back, 5 spaces should be there. Okay. And remember one more thing: it is not PPT, no, PPT. No need to mark the characters. Straight away, you will need to write the stories. No characters, no action, nothing. You have to write it straight away. Write the stories and observe the picture carefully.
Write your blank story, guys. 4 minutes. Okay, time up, guys. Stop writing. Stop writing. Everyone. Now, see, next step for you guys, I'll be sending a number to you. Just make the PDF of all your stories. Okay. Before sending the PDF, make sure you send your name also. Okay. I'm just sending a number. On that WhatsApp, you have to send your PDF with name and age. Name and age. Okay, remember this thing. Now stop writing, everyone. Okay. I have pinned a number in the chat box. Make sure you send your PDFs in next 5 to 10 minutes max to max. Okay, not more than that. जल्दी PDF send करो इस number पे.
No, wait, अभी नहीं. Just send your, अच्छा, for sending the PDFs. I think send, आप PDF सेंड करने की बात कर रहे हैं कि PDF सेंड करने के लिए आपको मीटिंग लीव करना पड़ेगा, इसलिए पूछ रहे हो. ओके, फाइन. आप लोग अपना PDF सेंड कर दो, इंडिविजुअल PDF विद नेम. डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर नेम एंड एज. आई एम टेलिंग यू अगेन, ठीक है? अपना नाम और एज उस पर मेंशन करो, PDF बनाओ, और ये नंबर मैंने पिन कर दिया चैट बॉक्स पे, ठीक है? इसी नंबर पे भेज देना. यू विल बी गेटिंग पर्सनल रिव्यूज, ठीक है? पर्सनल आपको रिव्यूज आपकी स्टोरीज के मिल जाएंगे, ठीक है? ध्यान रखना. क्लियर? ठीक है, अपने PDF सेंड कर दो. चीज अनलक सर, ठीक है? लेकिन अपना PDF सेंड करो बना के जल्दी. श्योर फोटोज क्लियर होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए. ब्लड इमेजेस मत डाल देना यार, नहीं तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू एनालाइज योर पिक्चर्स, स्टोरीज. All right, guys. So, how was the test? Please tell someone how was the test. Response karo yaar. Try to be interactive. No, you guys are going to be officers very soon. I can't see any responses in chat box. Manju, Radhika, Deepan, Rishiraj, anything? चलो ठीक है. सर ने आपको बताया होगा हाउ टू फिल अप योर रिस्पॉन्सेस. सो प्लीज डू द सेम. अपनी रिस्पॉन्सेस का PDF बनाइए, फोटो क्लिक करके PDF बनाइए, और जो नंबर आपको चैट बॉक्स में दिया गया है, प्लीज नोट दिस नंबर डाउन, और इसी नंबर पे आप अपने रिस्पॉन्सेस की PDF सेंड कीजिए. So what I will do, I will see your responses, I'll look at your stories. If the stories are howsoever visible to me, so I'll give you the, what I'll give? I will give you the assessments. मैं आपको assessment और response दूंगा, है ना? So please do the same. Take your responses, make a PDF, send in this number WhatsApp, which is provided to you. We will give you the response or the feedbacks on the same. Individual feedback दिए जाएंगे, group में नहीं देंगे, क्योंकि it will not be comfortable for you guys. So we will give you feedbacks in the groups only. All right. Sure. So have a nice time. I hope it was fine for you. Thanks for bearing me out for a long time. Have a good night. Take care of yourself, and please send responses as soon as possible. Jai Hind.